Hi friends, welcome back to my channel Divine Traveler, the tale behind the stone walls. Episode number 30, season 1, phase 4. And in this episode I cover our journey on day number 76 when we traveled from Shimoga towards Sagara, covering the famous Mattur Sanskrit village, Talagunda, the beautiful temples of Baligavi and the Bandalike temple complex with Jain Basadi. I began our day's journey with the beautiful and famous Mattur village, known for being the Sanskrit village of Bharat. Mattur is a village in Shimoga district near the city of Shimoga in Karnataka, known for the usage of Sanskrit for day-to-day communication, although the general language of the state is Kannada. Mattur is located by the Tunga river around 4 kilometers from Shimoga and has been long known as a center of learning of Sanskrit and Vedic studies. According to the copper plate inscriptions preserved by the archaeology department, Mattur along with neighboring Hosahalli were gifted to the people by the emperor of Vijayanagara in 1512. Sanskrit is the main language of a majority of 5,000 residents in this small village and is a required subject in schools. This rare trait received a significant boost in 1982 when Vishvesha Tirtha, pontiff of Udupi's Pelavara Matha, visited the Mattur and dubbed it the Sanskrit village. The village has produced over 30 professors of Sanskrit who teach. Centuries ago, the charming of Mattur's nature attracted scholars and Brahmins of different communities to settle in the place. The ambience is perfect for indulging in spiritual activities and religious practices. The village was occupied by Brahmins who came from Shimoga district and also the Sanketi Brahmins who migrated from Kerala. Afterwards, farmers, laborers, part-time workers and other people from surrounding regions of the Karnataka. Slowly, a budding community and an entire civilization were established on the banks of Tunga river and Mattur village took shape. There are no historical records that give us the exact date of the year when Mattur village was established. I spoke to an acharya and a priest at the main temple at Mattur. संस्कृत वेद सब वेदांत शंकर भाष्य शंकर भाष्य अच्छा ऑलमोस्ट 50 साल पुराना बताइए। इधर रेगुलरली 20 लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। ओके बाकी सब हमारा मदर लैंग्वेज संकेत है। सभी लोग जानते हैं संस्कृत को। अच्छा मगर बाकी सब संकेत में ही बात करते हैं। और यहाँ पे स्कूल्स वगैरह यहाँ पे स्कूल वो भी संस्कृत में है क्या? नहीं, संस्कृत स्कूल इधर है, संस्कृत वेद पाठशाला है। वो किधर है? यही रोड पे ही है। अच्छा नजदीक ही है। अच्छा ओके यूनिट बोलता हूँ मैं। हाँ तो वीडियो कर रहे हैं। हाँ ये विलेज तो हजारों वर्ष से हम वेद शास्त्रों का अध्ययन और शरमगांव का अध्ययन कर रहे हैं। ओके ऐसा अभी 20-30 लोग हैं। पहले पूरे गांव में सभी लोग करते थे, परंतु आर्थिक समस्या के कारण से सब लोग छोड़कर IT जाने वगैरह में गए। परंतु हमारा कुटुंब और 5-6 कुटुंब में अभी वेद शास्त्रों का अध्ययन शरमगांव का अध्ययन हो रहा है। ये परंपरा से आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से, पिता पुत्र परंपरा से आ रहा है। ये तो हजारों वर्ष से है। इसमें संस्कृत में ही हम टीचिंग करते हैं हमारा शिष्यों को, हमारे पुत्रों को। ऐसा संपूर्ण ज्ञान, वेद शास्त्रों का ज्ञान, क्षणकों का ज्ञान हम उनको देते हैं। और तो अन्य जो लोग हैं, लौकिक लोग हैं, उनके लिए जो संस्कृत का जो अभ्यास करने के लिए संस्कृत भारती एक संस्था है, वो उनको प्रेरित कर रहा है शिविर वगैरह कर। हम केवल सपोर्ट करते हैं। तो हमारा प्रधान उद्देश्य वेद शास्त्रों का रक्षण, उसके द्वारा संस्कृत का रक्षण। संस्कृत का मतलब केवल भाषा नहीं हो, वो हमारा मन, इंद्रिय, देह, बुद्धि को संस्कार देकर हमको जन्म मरण से, संसार से, सभी दुख से बाहर आने का सामर्थ्य और शक्ति देता है। इसलिए संस्कृत का मतलब केवल भाषा नहीं, वो हमारा वेद शास्त्रों में, हमारा ऋषि मुनियों ने जो जीवन पद्धति हमको दिया है, जो सभी दुख से बाहर आने के लिए, संसार से, जन्म से बाहर आने के लिए
इस जीवन पद्धति जीवन क्रम को भी विधान तरीके से संस्कृत बोलते हैं। जब भी मन बुद्धि इंद्रिय संस्कृत होता है, देह संस्कृत होता है, तब हम सभी दुख से जन्म से संसार से बाहर आने का योग्य बन जाते हैं। इसलिए संस्कृत सभी को अध्ययन करना चाहिए। शाश्वत सुख पाने के लिए, दैहिक सुख पाने के लिए, प्रापंचिक सुख पाने के लिए जो जीवन करता है वो दुख में डूब जाता है, जन्म मरण में डूब जाता है और संसार में डूब जाता है। जो संसार से जन्म मरण से दुख से बाहर आने के लिए इच्छा करता है, यही जीवन का एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, तब उनको अवश्य हमारा वेद शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने जो जीवन पद्धति हमको दिया है, जब ध्यान वगैरह करना, पूजा करना, ध्यान करना, इसको करना चाहिए। इससे अवश्य बाहर आ सकता है। इसको ही संस्कृत कहते हैं। ये विलेज का यही विशेष है। इसमें हम संस्कृत का अध्ययन, संस्कृत का महत्व और संस्कृत का प्रयोजन बोलते हैं। जो अलग भाषा में जो प्रयोजन नहीं मिल सकता है वो संस्कृत से मिलता है। कैसा? अलग भाषा में सभी दुख से हम बाहर नहीं आ सकते हैं, संसार से जन्म से बाहर नहीं आ सकते, परंतु संस्कृत अध्ययन से हम बाहर आ सकते हैं। इसलिए ये बड़ा प्रयोजन है। इसलिए संस्कृत को सभी को अभ्यास करना चाहिए। कितना बड़ा विलेज है ये? गांव कितना बड़ा है? गाँव तो अग्रहार पुरातन है। इसमें 120 घर है संस्कृत वाले विलेज में। जो संस्कृत वाले 120 घर से। 120। बाद में जो काम के लिए आए हैं उनका 600-800 घर है। और स्कूल्स कितने हैं संस्कृत? स्कूल सारे संस्कृत में ही है? संस्कृत में जो स्कूल संस्कृत पाठशाला है, हाँ। अन्य स्कूल में सिलेबस बनाकर दे दिए हैं। संस्कृत का संस्कृत का सिलेबस हमने 1 to 7, 8, 9, 10th में गवर्नमेंट का ही सिलेबस अच्छा दिया है, उसको पाठ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हिंदू छोड़ के दूसरे रिलीजन के भी हैं या? सभी लोग, तो वो भी संस्कृत बोलते हैं नहीं? सभी उनको भी प्रयत्न कर रहा है वो संस्था। अच्छा इसके बारे में जानकारी आप उन संस्था से जानिए। उन संस्था में गिरीश वगैरह टीचर है, वो करते हैं। अच्छा। हम तो प्रधान तरीके से वेद शास्त्रों का अध्ययन हमारा पुत्रों को, शिष्यों को कराते हैं। वेद उपनिषद सब पढ़ाते हैं फिर? हमारा पुत्रों को, हमारा शिष्यों को, इनके लिए ये परंपरा को रक्षण करना ही हमारा प्रधान उद्देश्य है। इसमें हम लगे हैं। वो तो सभी लोगों को संस्कृत का जानकारी और ज्ञान देने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। और कितने स्कूल हैं यहाँ पर? ये तो 2 स्कूल है संस्कृत मतलब जिसमें संस्कृत पढ़ाया जाता है? नहीं, हाँ स्कूल पढ़ाता है। इधर 2 है, इधर गवर्नमेंट स्कूल वो है, उधर संस्कृत नहीं पढ़ाता। अच्छा। इधर ये गवर्नमेंट एडेड है, ये इसमें संस्कृत पढ़ाता है। अच्छा। Okay, I am in hurry now. Okay, just give me 2 minutes. Otherwise you come at 10 o'clock. No, actually I am from outside now, so I have to move. My family is with me. My wife is not very well actually. She is ill. Just 2 minutes. Tell me something about the village. Samskrite vadami va? Can I tell in Sanskrit? You can tell in Sanskrit, then Hindi or English. One. Sanskritam. किं वक्तव्यम्? I learned Sanskrit almost 30 years back. 3 years. जानाति I संस्कृतं?
Sanskritam? I do not remember anything now. You can speak in Sanskrit, then little bit in translate in English. So, or Hindi. अत्र प्रायशः वयम् अस्माकं प्राचीनजनाः तत्र शेङ्कोट्टे इति ग्रामः अस्ति केरला तथा तमिळ्नाडु सीमाप्रदेशे शेङ्कोट्टे इति ग्रामः अस्ति ततः प्रायशः 500 इयर् बेक् ते अत्र आगताः तदा विजयनगर राजा तस्य नाम रामराय इति सः एनं ग्रामं उपाधिरूपेण दत्तवान् अस्तु वा तथा बहुमानरूपेण इदं दत्तवान् एनं ग्रामं तदा अस्माकं ब्राह्मणाः जनाः वेदे वैदिक संस्कृतं यज्ञयागादि संस्कृतं व्यवहार संस्कृतं सर्वं जानन्तः आसन् तत् स्वस्ति वाचनम् इति एकः भागः अस्ति मन्त्रे स्वस्ति भाग एतत् मन्त्रं वदन्तः आसन् अस्माकं जनाः तेन अत्यन्तं सन्तुष्टः राजा इदं तथा पार्श्वे तुङ्गानदी प्रवहति अत्र तुङ्गानद्याः तस्मिन् पार्श्वेपि एकः ग्रामः अस्ति तस्य नाम होसहळ्ळि इति तत् ग्रामद्वयमपि तत् दानरूपेण दत्तवान् सः अनन्तरं वेद संस्कृतिः आसीत् एव इदानीं प्रायशः 40 इयर्स् बेक् उडुपि पेजावर मठ इति अस्ति ते स्वामिनः तत्र आगताः विश्वेशतीर्थस्वामिनः इति तस्य नाम तदा सः उपन्याससमये सः आशीर्वादं कृतवान् अत्र वैदिकसंस्कृतिः अस्ति बहवः यज्ञयागादिकं होमहवनादिकं सर्वं कुर्वन्तु सर्वे संस्कृतेनैव सन्ति अतः भवतः व्यावहारिकभाषा अपि संस्कृतमेव भवतु इति उक्तवान् आशीर्वादसमये तदारभ्य वयं संस्कृतं व्यवहारेपि आनीतवन्तः चमु कृष्णशास्त्री इति एकः संस्कृतभारती अध्यक्षः अधिकारी सः आगत्य अत्र सम्भाषणशिबिरं यथा स्पोकन् इंग्लिश क्लास् वर्तते तथैव स्पोकन् संस्कृत क्लास् 10 दिनात्मकं वर्षद्वयं चालितवान् तदारभ्य वयमपि संस्कृतं व्यवहारेपि वदन्तः स्मः अस्माकं मातृभाषा संस्कृतं नास्ति संकेती किमर्थं चेत् शेङ्कोट्टैतः आगताः इति कारणतः अस्माकं मातृभाषा संकेती इति तस्य लिपिः नास्ति स्क्रिप्ट् एतत् नास्ति संकेती also from Devanagari script no नास्ति स्क्रिप्ट् नास्ति तस्य no script okay only we are talking in sanketi kannada and also sanketi is different from Sanskrit it is तत्र sanketi भाषा तमिळु तथा मलयाळम अतीव निकटा भाषा it is near to Tamil similar to Tamil and Malayalam okay कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे हाउ मेनी स्कूल्स इन संस्कृत actually we are talking teaching Sanskrit in the school but it is not Sanskrit medium okay Kannada medium school but we are any Sanskrit medium school no all are Kannada or English as a language Sanskrit is there okay not Sanskrit medium and what exactly is this there's Sanskrit parts Gurukulam okay तत्र केवलं ब्रह्मचारिणः आफ्टर उपनयनम they are studying Yajurveda okay here and Yajurveda with Sanskrit also only Yajurveda or Rigveda other Veds Vedapi किंचित परंतु विशेषतया Yajurveda so in schools there is a Sanskrit subject and in Gurukul they teach Vedas Upanishads also no the Upanishad also आता है अच्छा गीता भगवद गीता भगवद गीता अपि पाठयन्ति ओके स्पोकन इंग्लिश संस्कृत अपि बोधयन्ति
एव। How many Sanskrit teachers are here? अत्र तत्र in job 4 teachers we are. Okay. But other than so many scholars are there, but they are not in ते शिक्षक वृत्तिः इति नास्ति, गवर्नमेंट टीचर्स नास्ति, स्वयं पाठयति। Okay, they are from this village only. हाँ, सत्यम्। Acha. Okay. Before the 1980s, the people of Mattur village spoke Kannada, which is the regional language of Karnataka state. Also, the Sanketi Brahmins had a language of their own, a mix of Kannada, Malayalam, Tamil and Telugu. This was because of their frequent migration and relocation. They called their language Sanketi, but Sanketi Brahmins were the ones who actively spoke in Sanskrit and also chanted the mantras and hymns. They studied the Vedas and religious scriptures in the language. The priest of the Pejawar Mutt persuaded the villagers to learn Sanskrit irrespective of their societal status. It started off when people began learning, conversing and understanding the Sanskrit language for at least 2 hours a day. Within 10 days, everyone was able to converse or at least understand the language without any difficulty. After the 1980s, schools, institutions and Sanskrit centers were established in Mattur village for the locals or anyone to come by and learn the language. Mattur also has a twin village Hosahalli, and together they are referred together and known for their efforts to revive Gamaka art, which is the unique style of storytelling in Karnataka. Mattur has traditionally been home to a community of Sanketi Brahmins among its residents. Friends, with this I come to the end of part 1. I hope you did enjoy this. With part 2 and part 3, I cover the remaining areas we visited on day number 76. Till then, do take care of yourselves and bye for now.